بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ سچ ہے کہ انسان دنیاوی لذتوں میں کھو کر آخرت میں اپنے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سیاہ کار لوگ چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، مگر اس دنیا میں بھی کچھ لوگ عبرت کا سامان بن جاتے ہیں، جن کی سزا اسی دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک دائمی عذاب کا شکار رہتے ہیں اور نشان عبرت بن کر رہ جاتے۔ بدقسمتی سے میں بھی وہ بد نصیب بیٹا تھا جس کے باپ کی موت کے بعد بھی لوگوں نے اس کا ذکر بد نہیں چھوڑا۔ میرے ابا کی بازار کے درمیان میں دکان تھی، لیکن پھر بھی میرے ابا کی پورے بازار میں کوئی عزت نہ تھی، نہ ہی گھر میں، نہ ہی رشتہ داروں میں، کیونکہ وہ عورتوں کی پرسنل چیزیں بیچنے کا کاروبار کرتے تھے اور اسی کے حوالے سے انہوں نے دکان میں ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ سب کہتے تھے کہ دکان بنانے کا اتنا شوق تھا، کوئی بھی بنا لیتے، لیکن اس طرح کی دکان بنا کر تو الٹا شرمندگی اٹھائی ہے۔ جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں، ایسی دکانوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نارمل سمجھتے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو یہ چیزیں بیچنی ہوتی ہیں، لیکن اصل میں ایسے لوگوں کو گھر سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر والے تو زیادہ کچھ نہیں، کہیں نہ کہیں، لیکن رشتہ داروں باتیں ضرور کرتے ہیں۔ اور پھر میرے ابا بڑی عمر کے آدمی تھے، چہرے پہ ان کے داڑھی تھی، آدھی زندگی وہ گزار چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا تھا، وہ بھی صرف اس لیے تاکہ میں پڑھ لکھ جاؤں، لیکن اچانک سے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، میری پڑھائی بیچ میں ہی رہ گئی اور مجھے اسی دکان سے اب روزگار شروع کرنا پڑا۔ اب میں نے دکان پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ سچ کہوں تو مجھے یہ کام بڑا عجیب لگتا تھا، اور پھر جس کو یہ کام آتا بھی نہ ہو اس کے لیے تو اور بھی زیادہ عجیب۔ عورتیں آتی مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیتی۔ شروع میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے گاہک کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، لیکن مجھے اصل مدے پر بات کرنی نہیں آتی۔ ایک عورت مجھے آ کر کہنے لگی کہ ایسا مال دکھائیں جو بہت زیادہ نرم ہو، چبھے نہیں۔ چپ جاتا ہے پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ریشز ہو جاتے ہیں، ہم بھی خوار ہوتے ہیں۔ مجھے تو اس کی باتیں سن کر شرم آ رہی تھی۔ جبکہ وہ سامان لینے آئی تھی تو ظاہر ہے اس کے بارے میں اس نے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہی تھی۔ میں بھی پریشان تھا کہ بابا کو ہوزری کی دکان بنانی تھی، اس سے اچھا تھا جوتے کی دکان بنا لیتے، میں بیٹھ کے جوتوں کو ٹانکے لگا لیتا، عزت کی روزی لگتی۔ لیکن یہاں پر مجھ سے عورتوں کو ڈیل کرنے کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی عجیب و غریب فرمائشیں ہوتی تھیں اور پھر وہ آپس میں بھی باتیں کرنی شروع کر دیتی تھی، آپس میں ایسی ایسی باتیں کرتی کہ سن کے میرے گال لال ہو جاتے تھے۔ کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ دکان والا 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہے، کاؤنٹر کے پیچھے ہی تو کھڑا ہوتا تھا، میں اتنا فاصلہ تو نہیں تھا رکھتا۔ کیا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان کی آپسی گفتگو میرے کانوں تک بھی جا رہی ہے؟ اور پھر مجھے ایسی ایکٹنگ کرنی پڑتی تھی کہ نہیں تو میں کچھ بھی سن نہیں رہا۔ کبھی کہتی تھی کہ یہ تو پورا نہیں آئے گا، یہ ڈھیلا ہے، ٹائٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ سن کے میرا دماغ ایسا خراب ہوتا کہ جب میں گھر آتا تو مجھے اپنے آپ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تھا۔ پڑھائی مکمل ہو جاتی تو کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جاتی۔ ایک طرح سے میری پڑھائی مکمل ہی تھی، لیکن نوکری حاصل کرنے کے لیے مجھے شہر جا کر کسی جگہ کا کام کا تجربے کے لیے کام کرنا پڑتا، اور نوکری بھی سفارش کے بغیر نہیں ملنے والی تھی۔ میرے پاس تو کوئی سفارش بھی نہ تھی اور شہر جا کر بھی مسلسل دھکے کھاتا، اور ادھر پھر گھر کو کون سنبھالتا؟ گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں تھا، 3 جوان بہنیں تھیں اور ایک آدمی، اور آج کل تو ویسے ہی بابا کے غم میں وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھی۔ مجبوری کا نام شکریہ، بس پھر اسی دکان پر ہی گزر بسر کرنے کا سوچا، مگر یہاں جو شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی وہ بیان سے باہر ہوتی ہے۔ میرا نام باسط تھا، میں شکل و صورت میں بہت زیادہ خوبصورت تھا، میں اتنا سفید تھا کہ میری داڑھی بھی براؤن رنگ کی تھی۔ جو لوگ زیادہ سفید ہوتے ہیں ان کی داڑھی براؤن رنگ کی آتی ہے۔ میری شکل دیکھ کے ہی تو عورتیں دکان پر آتی تھی۔ جب سارے رشتہ داروں کو پتا چلا کہ اب دکان میں سنبھالنے والا ہوں تو میرے ایک ابا کے دوست نے کہا کہ تیری دکان بڑی اچھی چل جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کام تو تجھے وقت کے ساتھ ساتھ آ ہی جائے گا، لیکن تیری شکل دیکھ کے تیرے پاس عورتیں خود بخود آ جائیں گی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیا عورتیں بازار میں صرف ان دکانوں پہ جاتی ہیں جہاں اچھی شکل کے مرد کھڑے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر انہی دکانوں پہ جاتی ہیں جہاں پر دکاندار اچھی شکل و صورت والا ہو اور اچھے طریقے سے مسکرا کے بات کرے۔ تیرے تو بال بھی بڑے اچھے ہیں، تو ذرا بالوں کا ہیئر سٹائل اچھا سا تو کر کہ تیری اس خوبصورتی کو 4 چاند لگے، اور اچھے سارے کپڑے پہن کے جایا کر، خوشبو وغیرہ لگا کے کھڑا ہوا کر، دیکھنا تیرے پاس تو عورتوں کی لائن لگ جائے گی۔ میرے ابا کے دوست نے جس طرح سے منظر کشی کی تھی، مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں دکاندار نہیں کوئی طوائف ہوں جو میں تیار شیار ہو کے جاؤں۔
मेकअप करके जाऊं और फिर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। तौबा, मेरा दिमाग पहले ही उलझा हुआ था, पढ़ाई में मेरी उलझ के रह गई थी। अब्बा इस दुनिया से चले गए, इनका गम भी तो मेरे लिए बहुत बड़ा था। और फिर ये कि अब मुझे ऐसी दुकान पे बैठना था जिसके पास से गुजरते हुए भी मुझे शर्म आती थी। मैं देखता था कि अगर औरतों के साथ कोई मर्द या लड़का होता तो वो दुकान के अंदर आने की बजाय सड़क पार खड़ा हो जाता था और औरतें ही आगे आती थी। किसी ने मशवरा दिया कि एक औरत रख लो दुकान के लिए, औरतों को डील कर लेगी, और जिस दुकान पे औरत खड़ी होती है तो औरतें ज़्यादा तसल्ली और सुकून से चीज़ ले लेती हैं और डिस्कस भी कर लेती हैं। लेकिन जब इस तरह की किसी लड़की को तलाश कर लिया जो ऐसी दुकान पे काम करने को राज़ी हो जाए, तो उसने तनख्वाह ही इतनी मांगनी है कि मैं परेशान सा रह गया। इसलिए मैंने तौबा कर ली। अब ऐसी कौन सी लड़की होगी जो बाजार में दुकान पे खड़ी होके काम करेगी। जाहिर है कोई बहुत मजबूर औरत होगी तो जाहिर है वो फिर पैसे भी ज़्यादा मांगेगी, क्योंकि वो अपनी जगह मजबूर है और उसको पता है कि अगर मैंने उसे रखना है तो अपनी जगह मजबूर हूँ मैं तो। सब लोग एक दूसरे की मजबूरी का ही तो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक दिन बड़ी अजीब बात हुई। एक औरत दुकान में आई और आते ही कहने लगी कि सुना है आपके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं। मैंने कहा कि जी, आप इनको जानती थी? उसने कहा कि हाँ, हम तो कई सालों से इसी दुकान से सामान ले रहे हैं। अच्छा, वो फलां चीज़ दिखा दो। वो साथ साथ बातें भी कर रही थी और साथ साथ शॉपिंग भी। फिर उसने ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि बड़ा अफसोस हुआ, आपके वालिद साहब के मरने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह इन पर रहम करे, जो उन्होंने इस दुनिया में बोया है वही काटेंगे ना। अब ऐसे इंसान के साथ तो फिर ऐसा ही होता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों का हिसाब किताब मरने के बाद होता है, लेकिन इनका तो दुनिया वालों के सामने हिसाब किताब होना शुरू हो गया। सबको पता चल गया कि किस नीयत के इंसान थे। सच कहते हैं भाई, कुछ जुर्मों की सजा इस दुनिया में ही मिलती है और फिर कब्र का अजाब कोई मगालता नहीं बल्कि सचमुच मौजूद रखता है। हम तो मना भी करते थे मगर वो बाज नहीं आते थे। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। उसने कहा कि क्यों, आपको नहीं पता आपके बाप की कब्र के साथ क्या हो रहा है? ये खबर तो पूरे गांव में फैली हुई है। मैं ये बात सुन के हैरान रह गया। हम रहते तो गांव में ही थे, लेकिन अब ये सिर्फ नाम का ही गांव रह गया था। यहाँ पे हर तरह की दुकानें थी, बाजार थे। ये औरत कैसी बातें कर रही थी। मैंने कहा कि आपकी मेरे वालिद के साथ कोई बहस हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था? उसने कहा कि लड़ाई झगड़ा करने वालों में से हम लोग नहीं हैं। जो कीमत हमने मांगी जाती है हमसे, हम दे देते हैं। आपकी दुकान का सामान अच्छा होता है तभी तो इनकी हरकतों के बाद भी हम यहाँ पर आए हैं और आपसे सामान भी ले रहे हैं। लेकिन मैं तो बस आपको ये बता रही थी कि आपके वालिद साहब का इंसाफ शुरू हो गया है। अभी भी वक्त है, इनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। कहते हैं कि अगर औलाद इनके लिए कुछ न कुछ पढ़ के भेजे तो फिर भी रियायत हो जाया करती है। हम तो अब भी इनका भला ही सोच रहे हैं। एक वो थे कि जिन्हें अपनी आखिरत की रत्ती बराबर भी परवाह ना थी। मुझे तो ये औरत बड़ी अजीब लग रही थी। इसने बहुत सारा सामान लिया और लेके वहां से जाने लगी तो फिर से एक बात पर कहकर रुक गई। कहने लगी कि तुम शक्ल से नेक और शरीफ आदमी लगते हो, अपने बाप जैसे ना बनना। तुम्हारा बाप तो मरने के बाद इबरत का निशान बन गया है। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि दिल कह रहा था कि मैं इस औरत से पूछूं कि तुम्हारा मसला क्या है, जो मेरे बाप के बारे में ऐसी उल्टी सीधे बातें कर रही हो। लेकिन फिर इसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। वो ऐसा क्यों कह रही थी कि कब्र का अजाब आ गया है? मेरे बाप की कब्र के साथ कुछ हो रहा है। मैंने इरादा कर लिया था मैं शाम को ही कब्रिस्तान जाऊंगा। कब्रिस्तान गांव से थोड़ा दूर था और बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान पूरे इलाके का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान था, क्योंकि शहर से भी मैयतों को यहाँ लाया जाता था और गांव से भी। ये शहर और गांव के बीच बना हुआ था। यहाँ जाने के लिए वक्त निकालना पड़ता था। यहाँ पर तो कुछ कब्रें ऐसी थी जो कई साल पुरानी थी। खैर, मैं अपने बाबा की कब्र की तरफ बढ़ा। यहाँ पर इतनी कब्रें थी कि कतबे से ही पहचान हो सकती थी, वरना तो आपको याद ही ना रहे कि मैयत को कहाँ दफनाया गया है। जब मैं बाबा की कब्र के पास पहुंचा तो मेरे कदमों तले से तो जमीन ही निकल गई। अभी मैं कुछ फीट दूर था कि मैंने इतनी दिलफरेब खुशबू सूंघी कि हैरान रह गया। ये खुशबू कहाँ से आ रही थी? वैसे कब्रिस्तानों में से अगरबत्तियों की खुशबू आती है, लेकिन मैं इसे खुशबू ना ही कहूँ तो बेहतर है, क्योंकि वो एक अजीब तरह की बू होती है जो आपके दिमाग को चढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ से तो बाकायदा खुशबू आ रही थी। जब मैं कब्र के करीब पहुंच गया तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये खुशबू तो मेरे बाबा की कब्र से आ रही थी। इसका मतलब कि वो औरत तान कर रही थी, उल्टी सीधी फजूलियात बक रही थी। मेरे बाबा की कब्र से तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और फिर खुशबू क्यों ना आती, वो तो बारिश आदमी थे। एक दफ़ा तो अल्लाह का घर भी देख चुके थे। एक हज किया था उन्होंने रोज़ा ज़कात के पाबंद थे। वो अपनी औलाद के रिस्क के लिए इस तरह का काम भी किया जिसमें सिवाय शर्मिंदगी कुछ ना था। कभी किसी का बुरा नहीं किया। इनके ख़ानदानी मसले मसाइल थे।
जायदाद के मसले थे, लेकिन ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए तो उन्होंने अपना हिस्सा वापस तक कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मैं अपने ही बहन भाइयों से लड़ नहीं सकता। ऐसे इंसान के साथ भला कुछ बुरा हो सकता है? वो औरत पागल थी। खैर, मेरे दिल को तो तसल्ली हो गई। मैंने कब्र पे फातिहा ख्वानी की और मैं घर वापस आ गया। घर आकर ये बात किसी को नहीं बताई, बस ये बताया कि कब्र से खुशबू आ रही थी। तो घर वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। अम्मी ने कहा, तेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे, काश कि उन्हें थोड़ा और वक्त मिल जाता। एक दो दिन इसी तरह गुजरे कि एक दिन फिर एक औरत ने इसी तरह की आकर बात करनी शुरू कर दी। इस बार वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, बल्कि अपने साथ बैठी एक औरत से बात कर रही थी। कह रही थी कि हाँ, ये इन्हीं का बेटा है, इसी की दुकान है, ये जिसकी कब्र के अंदर से। तौबा तौबा, उसने अपनी बात आधी अधूरी ही छोड़ दी थी और अपने ही कानों को हाथ लगाने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इससे पूछूं कि ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, लेकिन जब वो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी तो मैं उनकी बात में कैसे बोल सकता था। उन्होंने सामान लिया और फिर उन्होंने एक और अजीब बात कहने लगी कि आप बड़े अच्छे भाई हैं, भाई आपकी दुकान से ही सामान लेते हैं। बीच में कुछ अरसे के लिए सामान लेना छोड़ दिया था। मैंने कहा, क्यों, इसकी क्या वजह थी? उसने कहा कि वो आपके वालिद साहब की वजह से, लेकिन अब आपका अखलाक हमें बड़ा अच्छा लगा है, हम आप ही की दुकान से सामान लेने आया करेंगे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मैं भी इनसे ज्यादा पूछ नहीं पाया। मेरे वालिद साहब का अखलाक बुरा नहीं था। कहते हैं कि दुकानदार का अखलाक बुरा हो तो लोग उससे सामान नहीं लेते, लेकिन मेरे वालिद साहब का अखलाक बहुत अच्छा था। वो तो गर्मी में ग्राहक से ठंडा पानी, बोतल सब कुछ पिलाने की बात करते थे, और सर्दी होती तो चाय वगैरह का जरूर पूछते थे, चाहे ग्राहक ने कुछ लेना हो या ना लेना हो। मेरे वालिद साहब ने होल सेल का सामान भी रखा हुआ था, इसीलिए इनके पास बड़े बड़े ऑर्डर्स आते थे। तो ऐसे बड़े ग्राहकों को वो बगैर चाय पानी के नहीं भेजते थे। फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि वही है जिनकी कब्र पे अजाब आ रहा है, और बीच में हमने सामान लेना छोड़ दिया था, लेकिन अब हम दोबारा सामान लेने आ गए हैं। मैं फिर से परेशान हो गया। इस बीच एक और मामला हो गया, जिससे जब से बाबा इस दुनिया से गए थे उनकी कमरे की जनरल सफाई नहीं हुई थी। लेकिन जब कमरे की जनरल सफाई हुई तो कुछ ऐसी चीजें मिली कि जिनको देखकर सब घर वाले अजीब सी हैरत में मुब्तला हो चुके थे। बाबा का एक साइड टेबल था जिसके नीचे वाले हिस्से को हमेशा ताला लगा रहता था। वो लगा के रखते थे, यानी छोटी सी अलमारी थी और इसके ऊपर एक दराज था। इस छोटी सी अलमारी को वो हमेशा बंद रखते थे। जब सामान उठाया तो वो अलमारी टूट गई, क्योंकि 20-30 साल से एक ही जगह पर पड़ी थी। जब उसको खोला तो उसके अंदर औरतों की नाजेबा तस्वीरें थी। मेरी बहनें और अम्मी तो सर पकड़े बैठी थी कि ये सब क्या है, बाबा ने ऐसी चीजें क्यों रखी हुई थी। अम्मी ने कहा कि पता नहीं, वो तो हमेशा इस अलमारी को ताला लगा के रखते थे और सामान आगे पीछे करते रहते थे। जब से घर में आया तो मुझे भी ये बात बताई और कहा कि बड़ी अजीब बात है, लेकिन ठीक है, बाबा ने सारी जिंदगी नहीं बताया कि इस अलमारी में क्या है। और अब जब खोला तो इसके अंदर से ये सब कुछ निकला। मैंने तस्वीरों को देखा तो मैं समझ गया कि वो तस्वीरें नहीं थी, बल्कि जब हौजरी का सामान आता है तो उसके साथ इस तरह की तस्वीरें भी होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ मॉडल्स ने वो सारी चीजें पहन के दिखाई होती हैं। ये तो वही सारी तस्वीरें थी। मैंने कहा कि अम्मी बाबा अपनी दुकान पे ऐसी चीजों को बेचते तो थे, लेकिन ऐसी तस्वीरों को नहीं लगाते थे, सिर्फ सामान की नुमाइश करते थे, ऐसी मॉडल्स की तस्वीरों को नहीं जिन्हें वो सामान पहन कर दिखाया हुआ होता था। इसीलिए वो शायद तस्वीरें हटाकर इधर छुपा के रखते थे, किसी की नजर ना पड़े। बच्चियों वाला घर है, अम्मी और मैं भी जवान जवान हूँ, इसीलिए उन्होंने ये चीजें यहाँ पे छुपा रखी हूँ। अम्मी के चेहरे से अचानक परेशानी दूर हो गई। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसी ही होगी बात बेटा, वरना ये तस्वीरें वो यहाँ क्यों रखते? जाहिर है उन्होंने छुपा के रखी होंगी कि बच्चों के हाथ ना लग जाएं, और दुकान में उनको सामने लटकाने नहीं होंगे कि बुरा लगता है और फहाशी फैलती है। हम तो न जाने क्या क्या सोच रहे थे। मैंने कहा कि आप क्यों सोच रहे थे, ऐसा आपको सोचना तो नहीं चाहिए था। अम्मी ने कहा कि बस बेटा, गलती हो गई। मैंने वो तस्वीरें उठाई और उनको फाड़ के कूड़े में फेंक दिया। मैं तो परेशान होकर रह गया था। जब से दुकान में बैठा था अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। औरतें आती तो मेरे बाबा के बारे में उल्टी सीधी बातें करती। आस पास की दुकान वाले भी कहते हैं कि तुम्हारे बाबा तो तुम जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तुम तो दुकान चला ही नहीं रहे हो। दुकान चलानी तो इनको आती थी, लेकिन तरीका इनका बहुत ही गलत था। बहरहाल काम इनका अच्छा चलता था। अम्मी भी कहती थी कि बेटा, काम नहीं चल रहा है, इनको काम की पड़ी है। और मैं इस बात से हैरान था कि मेरे बाबा के बारे में ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे थे कि जहां आग लगी हुई हो वहीं से धुआं उठता है। अगर कोई बात ना हुई होती तो फिर इतनी सारी बातें क्यों हो रही थी? कोई ना कोई मामला तो था ही। एक दिन एक औरत आई और इस तरह की बातें करने लगी। मैंने कहा कि आंटी, आप बड़ी उम्र की हैं, मैं आपके बेटों जैसा हूँ, आप मुझे एक बात बताएं कि मैं जब से आया हूँ बड़ा परेशान हूँ।
मैंने कहा कि हाँ बेटा बताओ क्या बात है। उस औरत ने कहा। तो फिर मैंने उनसे कहा, मेरे बाबा के बारे में बुरा क्यों कहती हैं औरतें? ऐसा क्यों कहती हैं कि इनकी कब्र पे अजाब आया हुआ है? उन्होंने देख कहा कि देखो, ये गांव है, यहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, और जो तुम्हारे बाबा के साथ हो रहा है वो वाकई बड़े अफसोस की बात है। अब हमें नहीं पता बेटा कि वो अपनी जिंदगी में क्या करते रहे हैं। देखो, हाँ, हम ऐसी दुकानों पे ज्यादा नहीं आते हैं। मैं अभी तुम्हारे बाबा से कोई इतनी दफा बात नहीं हुई, ना ही हमने ज्यादा खरीदारी की है। अब तो मजबूरी में आना पड़ता है, घर में कोई होता नहीं है ना, इसलिए। मैंने कहा कि कौन सा अजाब मेरे बाप की कब्र पे? कोई अजाब नहीं आ रहा, इनकी कब्र से तो खुशबू आ रही है। मुझे गुस्सा आ गया। आंटी ने कहा कि खुशबू खुशबू तो इन लोगों की कब्रों से आती है जो बहुत ही नेक और ईमानदार होते हैं। खुशबू तो मौलवी अब्दुल शकूर की कब्र से आ रही है। कितना अच्छा इंसान था वो, मेरे चचा का बेटा था। अभी फौत हुए थे कि इस वक्त नहीं हुआ था इनको। ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कब्रों से खुशबू आती है। तुम्हारे बाप की कब्र से काहे की खुशबू आएगी? चलो, मान लिया कि जो तुम कह रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा इंसान नहीं था कि उसकी कब्र से खुशबू आएगी। ये सारी चीजें दुकान पे लगा के जो बैठा है, तुम्हें क्या लगता है इससे बेहयाई नहीं फैलती है? मैंने कहा तो फिर किसी ना किसी ने तो ये चीजें बेचनी ही है ना। तो औरत कहने लगी कि और भी बहुत से तरीके होते हैं इस चीजें बेचने के, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बाजारों में लटकी नहीं होती लेकिन लोगों तक पहुंच जाती हैं। इतना कहकर वो वहां से चली गई और मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने सोच लिया कि मैं फिर से कब्रिस्तान जाऊंगा और इस दफा बाकायदा वीडियो बना के लाऊंगा और सबको दिखाऊंगा। जो मेरे सामने उल्टी बात करेगा उसे दिखाऊंगा, और अगर किसी ने ज्यादा बातें की तो अपने साथ कब्रिस्तान ले जाऊंगा ताकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख ले। लगता है बाबा का कोई दुश्मन था, उनके खिलाफ सारी बातें फैला रहा था, लेकिन ऐसा खतरनाक दुश्मन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था कि जो मरने के बाद भी इनको माफ नहीं कर रहा था। एक शख्स मर गया है तो आप उसको माफ कर दो क्योंकि उसको बदनाम कर रहे हो। मैं कब्रिस्तान चला गया। इस दफा मैं जरा जल्दी आया था, यानी कि रोशनी में आया था। कब्रिस्तान के पास से गुजर गया तो फिर से खुशबू आ रही थी। मैं वहां खड़े होकर फातिहा खानी करने लगा कि गोरगन भागता हुआ आया। जैसे ही घोरतन भागता हुआ मेरे पास आया, उसने कहा कि आओ अल्लाह के बंदे, शुक्र है तू मिल गया। मुझे तो लगा था कि कोई आएगा ही नहीं, ऐसे लोगों की कब्रों पे भला कौन आता है, लेकिन शुक्र है कि तू मुझे मिल गया। मैंने तुझे एक बड़ी जरूरी बात बतानी है, तो चल मेरे साथ। मैंने कहा कि कहाँ चलूं? अपने बाबा की कब्र पे फातिहा ख्वानी तो कर लूं। उसने अपना माथा पीटा, जैसे पता नहीं मैंने कोई ऐसी बात कर दी कि जिसका कोई वजूद ही नहीं है। उसने कहा कि तू मेरे साथ आ। वो मुझे थोड़ा दूर ले गया जहाँ पर एक कब्र फटी हुई थी और उस कब्र के पास से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने कहा कि ये कहाँ ले आया मुझे? ये किसकी कब्र है? ये क्या हुआ है इस कब्र के साथ? इसने कहा कि ये तुम्हारे बाबा की कब्र है। मैंने कहा कि क्या? मैं हैरान रह गया, लेकिन इस पे तो मौलवी अब्दुल शकूर के नाम की तख्ती लगी हुई है। मैंने कहा कि ये मेरे बाबा की कब्र नहीं है, तुम देख नहीं सकते इस पे किसका कतबा लगा है, नाम क्या लिखा है इस पर? अल्लाह के बंदे, यही तो गड़बड़ हुई है। एक ही दिन में दोनों मैयतें लाई गई थी और कब्र के कतबे उल्टे लगे हुए हैं। मैंने कहा कि ये सब नहीं हो सकता, तुम मुझसे गलत बयानी कर रहे हो। उसने कहा, लगता है मैं सच बोल रहा हूँ, वरना मौलवी अब्दुल शकूर की कब्र से बदबू कहाँ से आएगी? वो तो बड़ा ही नेक आदमी था। और तुम्हारा बाप? मैंने कहा कि क्या मतलब, मेरा बाप क्या? उसने कहा, देख लो, पूरे गांव को पता है। तू तो शहर में पढ़ने गया था ना, इसलिए तुझे पता नहीं है, पर तेरा बाप दुकान पे आने वाली औरतों के साथ दिल शोरियां करता था। कहता था कि तुम्हारा नंबर क्या है। अब तो तुम पतली हो गई हो, पिछली बार से बहुत मोटी है होकर आई थी। इस किस्म की बातें करता था और इसका दिमाग इन सारी बातों की तरफ बहुत ज्यादा लगा हुआ था। अब मैं तुझे क्या क्या बताऊं, वो इस दुनिया से चला गया है। इतना समझ ले कि जो कब्र फटी है ना, बिला वजह नहीं फटी है। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया और फिर मेरे दिमाग में ये बात भी आई कि अगर बाबा अपनी दुकान में नाजेबा तस्वीरें ना लगाना चाहते तो फिर इन तस्वीरों को कूड़े में क्यों नहीं फेंका? उन्होंने अपने कमरे में क्यों छुपा कर रखा हुआ था? इसका मतलब वो चुपचाप इन तस्वीरों को देखते थे, चुप चुप। मैं वहां पर जमीन पर बैठ गया। गोरकर ने करने के कहा कि अब क्या करना है? मैंने कहा कि तख्तियां बदल दे, या जो सच है वो सच ही है। उसने कहा कि देख नसीर, नसीर का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अकेला आदमी था, उसने शादी भी नहीं की थी। अगर तू कहता है तो मैं नहीं बदलता, लेकिन लोगों को कब्र की जगह याद है, तभी तो लोगों को पता है कि तेरे बाप की कब्र पे अजाब आ रहा है। मैंने कहा कि वो नेक आदमी था, इसकी कब्र पे मेरे बाप की तख्ती लग गई है, इसमें इसका क्या कसूर है? तू तख्तियां बदल दे। अगर मैं गोरकन को कुछ पैसे देता तो शायद वो इन तख्तियों को ऐसे ही लगा रहने देता और आहिस्ता आहिस्ता ये भी बात लोगों के दिल दिमाग से बिठा देता कि मेरे बाप की कब्र पे कोई अजाब नहीं आया है। अगर मैं गोरकन को कहता ना तो शायद वो तख्ती ना ही बदल होती और आहिस्ता आहिस्ता ये सब ठीक हो जाता, क्योंकि मेरे बाप की कब्र पे कोई अजाब नहीं आ रहा, उसकी कब्र से तो खुशबू आ रही है।
लोगों ने शायद एक ही दफ़ा यहाँ आकर देखा था और इसके बाद बात फैल गई थी। तख्ती बाद में लगी थी और यहाँ पर इतनी सारी कब्रें थी कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पर दफनाया था। ये एक बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी थी। मैंने गोरकन से कहा कि बस इतना करम करना कि अब किसी से भी इस मौजू पे कोई बात ना करना। अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना मुझे नहीं पता। बातों से बात निकलती है और ये ना जाने कहाँ पहुँच जाती हैं। उसने कहा कि वो ऐसा ही करेगा। अगर वाक़ई बाबा ऐसी हरकतें करते थे तो फिर इससे ज़्यादा बुरी हरकत और कोई हो ही नहीं सकती कि दुकान बना के बैठे हैं कि किसी घर की औरत को आपकी दुकान पर है और आप इनसे फ्लर्ट करने लग जाते हैं। उल्टी सीधी बातें करने से नहीं, ज़ुबानी जुमले इस्तेमाल करते हैं, इनको छिड़ाते हैं। क्या हो सकता था इससे बुरा? और यूँ तो मेरे बाबा एक दिन में ना जाने कितने लोगों की बद्दुआएँ लेते होंगे और फिर वही बद्दुआएँ शायद इनको लग गई थी। जब कोई आपके माँ-बाप को बुरा कहता है तो आपके तन बदन में आग लग जाती है। आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा तब लगता है जब कोई आपके माँ-बाप वाक़ई बुरे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी रगों में खून की बजाय ज़हर दौड़ रहा है। मैंने बाबा की कब्र पर फातिहा ख़्वानी की और रोज़ इनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ के इनको सवाब की रूह को भेजता था, ताकि इनके अज़ाब कम हो जाएँ। इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता था? मैं तो इनका बेटा हूँ ना, मैं तो यही करना था। इस कब्र को भी बंद करवा दिया, लेकिन अभी भी दिल में सोचता हूँ कि बाबा ने जो किया बहुत गलत किया। अल्लाह का अज़ाब तो फिर आना ही था। फ़हाशी फैलाने वाले पर गुनाह का बोझ दिन-ब-दिन बढ़ता रहता है। पता नहीं मेरे बाप को अपनी आखिरत की फ़िक्र से ज़्यादा ऐसी दिलचस्पियों से रग़बत क्यों थी? अगर वो अपना काम नफ्स की बुराई से बचकर करते, तो शायद आज वो इतनी शर्मिंदगी का मुँह ना देख रहे होते।